Good morning, students. Let's continue our chapter number 15, Life on the Earth. Students, in the last lecture, we discussed about the ecology, the term ecology, habitat, ecosystem, ecological adaptation, and types of ecosystem, in which we discussed that there are two types of ecosystem, that is terrestrial and second is aquatic. Terrestrial means land surface, the ecosystem which lies on the land surface. And the aquatic means the ecosystem which lies in the water bodies. Now, terrestrial are further classified into biomes, while the aquatic are classified as maritime and the freshwater ecosystem. Now come to the structure and functions of ecosystem. Structure and function of ecosystem involves a description of the available plant and animal species. यहाँ पर हमारे अर्थ सरफेस पर किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हमें मिलती है, उस पूरे इकोसिस्टम को जानना या उसके पूरे स्ट्रक्चर या फंक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. As we discussed earlier that abiotic factors include rainfall, temperature, sunlight, atmospheric humidity, soil conditions, inorganic substances including carbon dioxide, water, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, etc. So all these are included in abiotic factors, means non living things. रेनफॉल है, जैसे कि ये कुछ चीजें जो है हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है, जिनमें हम इंक्लूड करते हैं रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, atmospheric humidity. All these factors are related to the atmosphere. While the soil conditions, inorganic substances, कुछ inorganic substances हम देखेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, all these are included in abiotic factors. But these factors are in these factors influenced the living things. ये सभी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी जो है लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, और किसी न किसी रूप में सभी लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग थिंग्स इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं. नाउ कम टू द बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स, द कंज्यूमर्स एंड द डीकम्पोजर्स. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो बायोटिक फैक्टर्स है उसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स को. बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स को हम इंक्लूड करते हैं प्लांट्स, बिकॉज दे इनिशियली प्रिपेयर देयर फूड विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड सोयल, and this process of making food by the plant is called photosynthesis. So they are known as primary producers. The consumers are in the three categories: primary, secondary and tertiary. Herbivores are known as the primary consumers because they firstly eat the plants, and the secondary is the carnivores eats the herbivores. And tertiary, secondary जो top carnivores हैं, that eats carnivores. तो ये जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जिनको हम कह सकते हैं, जैसे कि टाइगर, स्नेक, लायंस, दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवर्स. और कुछ कार्निवर्स ऐसे हैं जो इन्हीं कार्निवर्स पर फीड करते हैं, लाइक हॉक्स एंड मैंगोजेस. So these are known as top carnivores or the tertiary consumers. Lastly is the decomposers. Decomposers are those that feed on dead organisms. डेड organisms, जो भी चीजें मर जाती हैं, जो भी लिविंग बींग्स मर जाते हैं, उनके डेड रिमाइंस पर ये फीड करते हैं. जैसे कि वल्चर्स है या फिर हमारे क्रॉस है, ये जो डेड रिमेन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको अपना जो है फूड बनाते हैं. कुछ बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आल्सो एक्ट लाइक एज decomposers. Clear? Now you can see this with the help of this chart. Here it is the producer, green plants. Producer are the green plants which derives their soil nutrients. With the help of soil nutrients and solar energy, they produce their food. Now these are eaten by the
primary consumers that are called herbivores. Now these herbivores are eaten by the secondary consumers that are called carnivores. Now further these secondary consumers are eaten by the tertiary consumers जिसको हम top carnivores कहते हैं. अब ये जितने भी हैं चाहे वो plants हैं हमारे या secondary first primary secondary और tertiary consumers, इन सब की जब ये इनकी लाइफ पूरी होने के बाद इनके जो डेड रिमेन्स है वो डेड रिमेन्स कौन डिकम्पोज कर देता है? डिकम्पोजर्स. लाइक कुछ एनिमल्स डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इस तरीके से ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है जिससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है कंज्यूमर्स हैं उनके डेड रिमेन्स दोबारा से किस में मिक्स हो जाते हैं? सोयल न्यूट्रिएंट्स में मिक्स हो जाते हैं. तो इस तरीके से हमारा पूरा इकोसिस्टम फंक्शन करता है. मीन्स कि अर्थ पर इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में रहता है. जो चीज बनती है वो चीज जो है वो दोबारा से उसी में मिक्स भी हो जाती है जहां से वो प्रोड्यूस होती है. क्लियर? नाउ द प्रोड्यूसर्स दिस is called food chain. Means the producers are consumed by the primary consumers. फिर ये primary consumers means herbivores. ठीक है, producers means plants. तो plants को जो है वो कौन खा लेते हैं? Primary consumers. Now these primary consumers are eaten by the secondary consumers, and further the secondary consumers are consumed by the tertiary consumers. फिर तब decomposers feed on the diet at each and every level. अब इन सब चीजों में क्या होगा? जैसे कि अगेन वी विल फोकस ऑन द चार्ट. प्रोड्यूसर्स को जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हार्बिवर्स ने खाया. तो प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, जब वो अपना खाना बनाते हैं तो प्रोटीन विटामिन और ये सब इनके अंदर आता है. जब ये प्लांट को हार्बिवर्स खाते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाती है? हार्बिवर्स में ट्रांसफर हो जाती है. फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं दे ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब इन डियर या जो हार्बिवर्स हैं हम इसमें मानकर चलते हैं कि पहले ग्रीन प्लांट्स को डियर ने खाया. ठीक है, तो डियर्स में क्या आ जाएगी? प्लांट से एनर्जी जो है फ्लो हो जाएगी. फिर इस डियर को सेकेंडरी कंज्यूमर यानी लॉयन ने खाया. तो कुछ पार्ट जो डियर के अंदर जो एनर्जी की फॉर्म में था, चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, कुछ भी है, वो सारे मिनरल्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी लॉयन के अंदर चले जाएंगे. तो इस तरीके से लॉयन जो है वो अपने फूड यानी कि डियर से एनर्जी ड्राइव करेगा. फिर इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स यानी टॉप कार्निवर्स खा लेते हैं. हॉक्स और जो है काउ क्रॉस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं. तो इस तरीके से टर्शरी कंज्यूमर्स को अपनी एनर्जी मिलेगी सेकेंडरी कंज्यूमर से. तो इट मीन्स हर लेवल पर एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है. फ्रॉम द प्लांट्स टू डियर, डियर टू लॉयन, लॉयन टू बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इट मीन्स ये क्या है? पूरा एक फूड चेन है जो कंज्यूमर से यानी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और टर्शरी कंज्यूमर तक चलता है. सो दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन इन विच द energy and other food nutrients transfer from one level to another. So as a result, the food chains get interlocked with one another. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट occurs during the process of food chain from one level to another is known as flow of energy. कि प्लांट से डियर में गई, डियर से लॉयन में, लॉयन से क्रॉस में, तो हर लेवल पर एनर्जी जो है ट्रांसफर हुई एंड दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी. अब ये जो फूड चेन है दैट आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर. मीन्स कि एक ही जो फूड चेन है वही जो है एग्जिस्ट नहीं करते. सपोज कि डियर जो है वो एक ही तरह के प्लांट को नहीं खाते. They eat different type of plant. We human beings also eat different type of food. We are not satisfied with only one type of food.
है ना। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ओनली वन टाइप ऑफ फूड। तो इट मीन्स क्या होगा कि इसी तरीके से कोई भी लिविंग बींग्स है, दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इन वन टाइम। हम कई तरीके के फूड्स खाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि अ माउस फीडिंग ऑन ग्रेन मे बी ईटन बाय डिफरेंट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या और दीज कार्निवर्स मे बी ईटन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इट मीन्स क्या होगा कि माइस जो है उसको सिर्फ जो है डॉग्स ही नहीं खाएंगे, बल्कि और भी कार्निवर्स हैं। माउस को जो है डॉग भी खा सकते हैं, कैट भी खा सकते हैं, तो डिफरेंट कार्निवर्स जो है वो उसे खा सकते हैं। तो इट मीन्स क्या होगा कि एक ही फूड चेन नहीं होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है एक लिविंग बीइंग के साथ डिफरेंट फूड चेन कनेक्टेड है। तो एज अ रिजल्ट द फूड चेन गेट इंटरलॉक्ड विद वन अनदर। एक फूड चेन के साथ दूसरी फूड चेन भी है। अब माइस जो है वो ग्रेन्स भी खा सकता है और जो है दूसरे मटेरियल को भी वो ईट करता है। तो इट मीन्स क्या होगा कि उसकी एक चेन, फूड चेन से ही वो रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा फूड चेन में वो इन्वॉल्वमेंट है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, जहां पर एक से ज्यादा फूड चेन जो है आपस में इंटरलॉक है। दैट नेटवर्क ऑफ स्पीशीज इज नोन एज द फूड वेब। Generally, two types of food chains are recognized. First is grazing food chain and second is detritus food chain. अब ये दोनों चीजें क्या है? जो ग्रेजिंग फूड चेन है दैट स्टार्ट्स विद द प्लांट एज प्रोड्यूसर्स। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, यानी प्लांट से स्टार्ट होती है। प्लांट से हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड दैट एंड्स विद द कार्निवर्स एज द कंज्यूमर्स एट द लास्ट लेवल। तो इसकी जो स्टार्टिंग है प्रोड्यूसर से होकर एंडिंग होती है इसकी कार्निवर से, कंज्यूमर के रूप में। लास्ट लेवल हमारा इसमें कंज्यूमर कार्निवर्स रहते हैं। तो इसमें हार्बीवर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट का काम करते हैं, यानी इसमें हमारे 3 से 4 लेवल हमें मिल जाते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद हार्बीवर्स, हार्बीवर्स के बाद कार्निवर्स में भी टॉप कार्निवर्स। तो 3 से 4 लेवल जो है इस फूड चेन में रहते हैं, जिसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। और हार्बीवर्स जो है इसका इंटरमीडिएट लेवल है। अब हर लेवल पर क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगा। कुछ एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और कुछ एनर्जी जो है वो क्या होती है? रेस्पिरेशन, एक्सर्शन और डिकम्पोजिशन के थ्रू दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सपोज कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया। अब उनके जो लीव्स हैं उससे क्या होगा? उनका रेस्पिरेशन होगा। तो कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन के रूप में लॉस हो गई, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गई, और कुछ एनर्जी जो डियर या हार्बिवर्स उसको खाएंगे उनके अंदर चले जाएगी। तो इट मीन्स एनर्जी का फ्लो तो होता ही होता है हर लेवल पर, साथ के साथ यहाँ पर क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी भी हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, exertion and decomposition. So these the levels involved in a food chain range between 3 to 5 and energy loss at each level. Clear? Now the detritus food chain is based on autotrophous energy capture initiated by grazing animals and involves a decomposition or breaking down of organic waste and dead matter derived from the grazing food chain. अब ये जो एनर्जी है, ये जो फूड चेन है डिट्रेटियस फूड चेन, ये भी हमारी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, बट इट एंड्स विद द डिकम्पोजर्स। यहाँ पर हमारा लास्ट लेवल क्या है? डिकम्पोजर्स। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सब के डेड रिमेन्स को जो है वो डिकम्पोज कर दिया जाता है बाय द डिकम्पोजर्स, और उनका जो डेड मैटर है दैट मिक्स्ड इनटू द सोइल। तो ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में जो है इसको तोड़ दिया जाता है एंड अगेन इट included into the soil or the atmosphere. So these are the two types of food chains. First is grazing food chain and second is detritus food chain. Then next topic we will discuss in our next lecture. Have a nice day.